I'll be back in 2 minutes. Yeah. Yeah. Okay, so let's talk about any brute force solution. So So I was thinking that we should just we can go through the substring and we can just check if it had like if the character exists or not, like if that same character exists or not before. So We can go basically, through every single character of the substring. you are saying कि brute force solution is कि check for all substring, right? Yeah, you check for every yeah. single one. Check every But substring, check every substring whether yeah, it is good or not. yeah, like whether it has distinct By good, I mean whether it is having distinct elements. Okay. yeah, Now tell me exactly. one thing. If we have a substring, for example, if we Mhm. have the substring something like this, A, B, E, H, A, C, D, let's say. How will you check whether it is having unique characters? What is your way, like how to implement this, whether the substring is good or not? Oh. So I was thinking that we create um uh, like you start from the first character No, I'm just and saying. then Acha, acha, please go ahead. Start with the first character. Okay. so that's distinct. You can like add that to an array Mm-hmm. Mm-hmm. and Go then ahead. you check the second one if it's the same and then the third one, fourth one, fifth one, and then you go to the sixth one and it is the same, so you don't add it to the array. So how will I get to know कि it is same? That's what I'm Um, asking. I mean, can you just compare the values, right? Like, No, basically, let's say I want to check whether this substring is good or not. So let's start with the first character that you told me. So what should I do now with the first character? you can like add it to an array Basically, I can that create you've an already. array and I added A to it. That's what you mean? Yeah, so like we can compare, like as we go through every single one, we can compare if it's already in the array or not. Okay. So now I'll check for B. So now I need to iterate over all like whole array. That's what you mean.
Yeah. Okay, so basically in short you are saying कि instead of creating a new array, मतलब मैं बताता हूँ तुम क्या बोल रहे हो. तुम बोल रहे हो कि basically let's say this is the A. Now I need to check whether this A exists or not. So basically if like जहाँ जो पहले का string है उसमें मैं check करूँगा whether A is there or not, right? So Yeah. basically A is unique. So now for B also I'll check in the left part of B whether B Yeah, exists or not, exactly. right? Then for E I'll check Mm. for left part whether E exists or not. Then similarly for G I'll like, check for left part. Yeah. That's what you are saying, right? Instead of creating new array, we can also do Yeah, it in yeah. the same array itself, right? Yeah. Okay. So what is the time complexity of checking whether a substring is good or not? If the substring size is order of like let's say if the substring size is n, what is the time complexity to check whether the substring is good or not? Time. O and Basically, you need to run two loops, right? One loop will be yeah, for so O this, of n squared. correct, O of And n then square. one for yeah. Can we optimize this O of n square? Matlab, can we just optimize this part whether to check like to We check whether should a be able substring? to, yeah. Hmm? We should be able to. Yeah. Yeah. Can we actually use the same idea of frequency array or something that we used? Let's say, मतलब let's say I'm also creating the frequency array somehow, ठीक है? देखो ऐसे समझो. Frequency array है. अभी यहाँ पे A का information है. A आया मैंने यहाँ पे 1 कर दिया. B आया मैंने यहाँ पे 1 कर दिया. E आया मैंने यहाँ पे 1 कर दिया. G आया 0 था 1 कर दिया. H आया 0 था 1 कर दिया. अब now A आया and now I'll check the frequency of A. Since it is already 1, I got the point कि this is actually repeated, isn't it? Huh. है ना? Basically the point is you can also create a set as well. मतलब set भी कर सकते हो. Set बनाओ, सारे characters को set में डाल दो, and at last just check whether the set size is actually equal to substring size or not. If the set size is actually yeah. equal to substring size, it means all the elements are unique, right? देखो अगर तुम इन सब Yeah. elements को set में डाल दोगे, let's say this is your set, तो क्या होगा? A, B, E, G, H, C, D, right? ऐसे हो जाएगा तुम्हारा set. And what is the size of set right now? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. What is the size 5. of your string? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now since the size of set is Yeah. actually not equal to size of substring, it means the substring is not good, right? Yeah. Correct? So we can also do this. But the point is ki, so basically we need to insert every element in a set, right? To do that. So what is the time taken in inserting an element to a ordered set in C++? Like जो insert operation होता है set में, It's कितना time लेता है? O of n square. O of n square really? मतलब n square तो नहीं हो No, सकता. it's O of log n. It's Correct, O of it's log O n. of log n. Correct, correct. Oh, Basically The जो ordered set होता है C++ plus twos, yeah. में, the ordered yeah. set in C++ takes log n time. I'm talking about ordered set. And this ordered set actually contains all the elements in order, in sorted order. है ना? And it, Yeah, so correct. this ordered set takes a log n for insertion, log n for deletion, log n for searching. So everything Yeah. it does in log n. Hmm. So if we use a set, then the time complexity will be order of n log n because we need to insert every element, na? And inserting every element Yeah, is so that's why it's O costing of log n n. times log n. Hmm. So that's why. So to avoid this, you can use a unordered set. Have you heard of unordered set? I think it's not in that I've video. heard of it. Heard हाँ. of it, yeah. तो बेसिकली ऐसे समझो अभी के लिए कि जो ऑर्डर्ड सेट होता है ना, जो ऑर्डर्ड सेट होता है तुम्हारा, फॉर एग्जांपल चलो रुको मैं तुमको कॉपी टेम्पलेट अभी स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ. set.cp. Let's say if we have a string a in which I have written a lot of characters, ठीक है? अभी let's create a set of characters, ठीक है? S. And what I'm doing is I'm inserting each character in this set, ठीक है? Hmm. Now if I want to print the set, so let's print the set as well. With the same way you can also print the set as well, ठीक है? Okay. So let me write it. Printing the set. देखो अभी क्या होगा. If you look closely ये देखो sorted order में आया है, right? Hmm. हाँ. And that's the speciality of ordered set. ये जो चीज़ होती है ना, ये होता है ordered set. मतलब इसको set ही बोलते हैं, but this is actually ordered set because it keeps everything in order.
एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉग इन टाइम टू इंसर्ट एवरीथिंग, क्योंकि इसको काफ़ी सारे काम करना है ना हाँ अंदर, ये ऑर्डर्ड में रख रहा है तुम्हारे लिए. हम्म But there is also a yeah set which is unordered set in C++. ठीक है. It actually uses internally hashing. अब ये hashing कैसे काम करता है वो सब अभी अभी जानने की जरूरत नहीं है. बस तुम ये याद रख सकते हो कि it actually uses internally hashing, और ये unordered रखेगा, मतलब ये ordered नहीं रखेगा. ठीक है. इसमें order कुछ फिक्स नहीं रहता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर okay हम unordered set की बात करें, ठीक है, एंड इफ आई डू द सेम थिंग, तो देखो कुछ भी मतलब सेट तो है, यूनिक एलिमेंट्स आए, बट ऑर्डर सेम, मतलब ऑर्डर में नहीं है ना कुछ भी, एज यू कैन सी, हम्म है ना. दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ अनऑर्डर्ड सेट. और इसमें जो इंसर्शन डिलीशन कुछ भी करोगे ना, ये सब ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है रफली. oh ठीक है. इट एक्चुअली इंटरनली यूजेस हैशिंग, बट हैशिंग कैसे काम करता है वो अभी जानने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम, यू जस्ट काइंड ऑफ रिमेंबर राइट नाउ एट दिस पॉइंट कि अनऑर्डर्ड सेट एक्चुअली यूजेस हैशिंग इंटरनली एंड इट डज ऑल ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ 1. अगर तुम्हें सर्च भी करना है ना कोई चीज़, तो ये ऑर्डर ऑफ 1 रफली में दे देता है. ठीक है. Okay. Basically, instead of using a set, you can also use unordered set to improve the time complexity. Got the point? हाँ. और अगर अनऑर्डर्ड सेट भी यूज़ नहीं करना है, मान लो तुम्हें तो सेट ही यूज़ नहीं करना है, मान लो, तो तुम सिंपल एक एरे भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी एरे एग्जाम्पल दैट आई गेव यू, राइट. yeah उसको फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट नहीं करना है, अभी तुम एक एरे बनाओ प्रेजेंट, और ये प्रेजेंट जो है वो 0 1 बस मेंटेन रखेगा. वी जस्ट नीड टू नो वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट. वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द होल फ्रीक्वेंसी. करेक्ट. तो बेसिकली अब इसको correct ऐसे देखो कि हमने एक प्रेजेंट एरे बना लिया ऑफ साइज 26 लेट्स से. ठीक है. ऐसे करके अब मान लो कि यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जी है. ठीक है. ऐसा है. यहाँ पे एच है. अब मैं आइट्रेट करना स्टार्ट किया. मैंने देखा कि क्या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट इज वेदर ए इज प्रेजेंट और नॉट. एवरीबडी इज जीरो राइट नाउ. ठीक है. सिंस ए इज नॉट प्रेजेंट आई विल से ओके, just mark A as present and move ahead. What is the is B already present? The answer is no. So let's mark it as present, move ahead. And similarly, mark it as present, move ahead. Mark it as present, move ahead. Mark it as present, move ahead. Now, I already checked here कि A is already present. It means A is repeated, and I can directly say that it is not good. Correct? And using a normal array, it will just cost me order of n time, because I just need to iterate over all the connectors once, isn't it? Oh yeah. Correct. Basically, we can use a present array here, है ना, to हाँ. check whether the substring is good or not. Okay. Correct. So now our brute force solution is to check every substring, check every substring whether it is good or not, and if it is good, मतलब update your answer to max of the size, max of all these sizes. Correct. So basically, now tell me what will be the time complexity of brute force solution? O of Basically checking every substring. So how many substrings are here? Around order of n square. Yeah. And to check whether each substring, to check whether a O of n substring is cube. correct. O of n Yeah. cube. So should I quickly write the code of it? Okay. Yeah. Then we'll discuss कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. Yeah. Okay. So copy template to largest distinct substring dot cpp. So basically, let's say we have an string. Array string कुछ भी हो सकता है, right? In problem. ये array और string के problems में substring बोल देगा अगर string की बात हो रही है. And if we are talking about array, then they will call subarray. ठीक है. So basically, we have taken a subarray. Now let's check for all substrings. Somebody just joined क्या? Yeah, sorry about that. It accidentally left. Oh, so basically, अभी मैं कोड लिखना स्टार्ट कर दिया हूँ. ठीक है. So you got this brute force approach? Yeah. Check every substring whether it is good or not, and what is the time complexity. Yeah. So basically, to check every substring, we just need to run a loop for I is equal to 0, I less than n. So let's take input size, let's take the size of string as well. Yeah. And we inside this we need to run a loop for j, right? Yes. Obviously. Now
we are talking about, so basically this j should not be 0, j should be from I. देखो क्या हो रहा है. You start from the yeah. Yeah. बेसिकली अगर हम किसी भी सब स्ट्रिंग की बात करें, फॉर एग्जांपल ए बी सी बी बी, ठीक है. बेसिकली नाउ वी आर रनिंग अ लूप, मतलब ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7. Basically we are running a loop from this. I is here, and then I'm checking all the substrings that are starting from I, correct? As you can see, Yeah. this j क्या कर रहा है, j is starting from here. हाँ. First of all I'm talking about a, then अगर j यहाँ पे आ गया तो I'm talking about this substring which is ab, है ना, ये वाला. Correct. Yeah. Then if j is here, then I'm talking about this substring which is abc, correct? ABC. Yeah. Okay. So basically after this I can say we are now talking about substring which is starting from I ending at j, correct? तो थोड़ा Yeah. ऐसे लिख लेते हैं, सही है. And now we need to check whether this substring is good or not. So basically let's assume कि we have an check function. So that will take your s and I comma j, ठीक है, and it will tell you whether the substring is good or not, ठीक है. And if check is actually good, then we need to update our answer with the length of the subarray, and length of subarray is j minus I plus 1, Yeah. correct? क्योंकि अगर j हाँ. यहाँ पे है, let's say j is at 2, तो basically 0 से 2 तक का बात करें तो what is the size, what is the length, 3, basically 2 3. minus 0 3. plus 1, Yeah. +1. correct? And then I'll just Mhm. print this answer. So you can right now assume कि we have this check function, और check function implement करना कोई बड़ी बात नहीं है ना. We just need to do this thing, वो जो present array बनाया था ना वो सब करना पड़ेगा, हाँ. हाँ. right? अभी what is the time complexity here? You can assume this check function is order of n, मतलब Yeah. kind Yes. of order of n, O of और है ना kind of order it's of O n. of n cubed. It's O of n cube, correct? Hmm. Can we optimize this? We should be yeah. Hmm? Yeah. देखो कैसे इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मतलब ब्रूट फोर्स ही रखेंगे अभी तो. बट देखो Mhm. फर्स्ट लूप में क्या हो रहा है, वी आर चेकिंग ए, देन वी आर चेकिंग ए बी, देन वी आर चेकिंग ए बी सी, देन वी आर चेकिंग ए बी सी ए, देन वी आर चेकिंग ए बी सी ए बी, ऐसा करते करते कर रहे हैं, राइट? हाँ. हाँ. अभी द पॉइंट इज, डू वी मतलब डू वी नीड टू चेक देम सेपरेटली, मतलब क्या ये ए फिर ए बी फिर ए बी सी इन सबको सेपरेटली चेक करने की ज़रूरत है क्या? मतलब पहले ए को चेक करेंगे कि फिर ए बी को, फिर ए बी सी को, फिर ए बी सी को, ऐसा थोड़ी करने की ज़रूरत है. कैन वी डू समथिंग एल्स? We can Yeah, just we should check be, the yeah. last. नो, नो नो नो, ऐसे नहीं कर सकते. देखो बेसिकली व्हाट एक्चुअली वी वांट टू नो फ्रॉम दिस, जो हम ये कर रहे हैं ना, इससे हम क्या जानना चाह रहे हैं? जब हम ए के लिए चेक कर रहे हैं, सारे सारे स्ट्रिंग्स हाँ. चेक कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली राइट नाउ चेकिंग ऑल द सबस्ट्रिंग्स दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0th पोजीशन, करेक्ट? तो वो Yeah. कौन कौन से सबस्ट्रिंग्स हो गए? ए हो गया, फिर ए बी हो गया, फिर ए बी सी हो गया, ए बी सी ए हो गया, ए बी सी ए बी हो गया, हाँ. और ऐसे करते करते मतलब एक बार और लिख लेते हैं पूरे, ए बी सी हो गया, हम्म. फिर और भी हो गया, मतलब आगे, ठीक है. अब Hmm. तुमने इसको चेक किया, ये तो गुड हो गया, इसको चेक किया, Yeah. ये भी गुड है, ये भी गुड है, हाँ. अब ये रॉन्ग हो गया, करेक्ट? Correct. नाउ टेल मी, इफ दिस गाय इज रॉन्ग तो आगे के सब लोग रॉन्ग ही होंगे. वाई? क्योंकि ए बी सी है तो I इनमें भी mean, है ना. oh हाँ, yeah, right. इफ दिस इज नॉट Yeah. हैविंग यूनिक कैरेक्टर्स तो आगे के सब लोग में तो ये प्रीफिक्स है ही, Yeah. दे स्टिल All the next one will be wrong only. ऑल द नेक्स्ट विल बी रॉन्ग ओनली, करेक्ट. तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमें पता चला, राइट? हाँ. हाँ. तो बेसिकली जब हम ए से फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने हमें बेस्ट रिजल्ट क्या मिला, यही मिला ना, ए बी सी. Yeah. एंड दैट्स एक्चुअली, ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मैक्स लेंथ substring starting from 0, isn't it? बेसिकली इस लूप से हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैक्सिमम सबस्ट्रिंग इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट्स एबीसी. Yeah. वंस Yeah. वी गॉट अ रिपीटेड कैरेक्टर वी कैन टर्मिनेट द प्रोसेस, करेक्ट? Correct. Yeah. बेसिकली देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच, मतलब इंस्टेड ऑफ चेकिंग इसको भी अलग से करने की बजाय व्हाट वी कैन डू, चलो यहाँ पे आई रखो, ठीक है, अभी हाँ. जे को यहाँ पे रखो, मतलब स्टार्ट तो तुम वैसे ही करोगे, बट एक अभी जब हर आई के लिए मतलब अभी एक प्रेजेंट एरे बना दो, वही प्रेजेंट एरे जो मैंने अभी बताया था ना. हाँ. Correct. तो ए
बी सी, ठीक है, और बस इतना ही। अब मैं क्या अरे वाह। करूँगा देखो, जब जे 0 पे है, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट हम्म दिस सबस्ट्रिंग, तो मैंने बोला ठीक है, ए पे 1 कर दिया। A1 नाउ अब जे जब मतलब इस पे आया बी पे, तो आई नॉट मतलब टॉक अबाउट ए बी अगेन, क्योंकि ए का इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी है, तो अब मैं सिर्फ बी को हाँ, अपडेट कर दूंगा and यहाँ we'll पे। talk about B, yeah. देन जब सी पे आया मैं, तो मैं सिर्फ सी को अपडेट कर दूंगा। देन जब फिर से ए पे आया ना मैं, तो मैं आई गॉट द पॉइंट कि ए इज़ ऑलरेडी रिपीटेड, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट एरर तो मेरे पास हाँ है ही ऑलरेडी। हाँ तो मैं एक्चुअली में, तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, कि जब मैं जे पे आ रहा हूँ तो मैं सिर्फ इस कैरेक्टर की ही बात कर रहा हूँ, मैं पूरे की बात कर ही नहीं रहा, बिकॉज हाँ अगर मैं जे हाँ पे यहाँ पे आया हूँ तो मेरे पास इसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ना प्रेजेंट एरिया में, yeah करेक्ट। yeah सो बेसिकली नाउ व्हेन आई रीच्ड हियर जे यहाँ पे आया, तो मुझे पता चल गया कि यार मैं तो मतलब ये तो गुड नहीं है, एंड आई जस्ट नीड टू टर्मिनेट दिस लूप राइट नाउ, जो जे वाला लूप है, क्योंकि हाँ आगे जाने का कोई हाँ मतलब है नहीं। हाँ एंड दैट्स व्हाई द आंसर, द मैक्स आंसर दैट आई कैन गेट फ्रॉम zeroth guy कि what is the max substring that is starting from you, he will say it is 3 size, it is of 3 size. We can actually optimize this मतलब slightly, और ये जो फालतू का हम लोग हर बार चेक कर रहे हैं ना, इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखो कैसे, हाँ फॉर ईच आई I'll create a present array, मतलब प्रेजेंट जो कि 26 साइज का होगा, ठीक है। हाँ अब इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अभी आई यहाँ पे, आई इज एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब जे यहाँ पे है, तो मैंने बोला ठीक है, जे स्टार्टिंग फ्रॉम आई गोइंग टिल एन, ठीक है। हाँ व्हाट आई एम हाँ डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग कि देखो, अगर if this character is already present, right, so if this s of I is already present, that's how you write the index, right, of a character, yeah but s of I नहीं होगा यहाँ पे, s of j होगा, because j will represent the current character, right. correct So if this s of j is already present, है ना, so what we should do, we should just break to terminate this process. yeah and then go to the next अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमें प्रेजेंट में इसको मार्क कर देना चाहिए, yeah we should and we should update our answer as well. Answer is max of answer the and max of the j answer minus I yeah plus 1. Got the point? yeah That's it. अभी यहाँ पे क्या होगा देखो, अगर हम ड्राई रन करेंगे ना इस प्रोसेस को, तो एक्चुअली में क्या होगा कि जब आई ए पे मतलब आई 0 पे था, तो तुमने फर्स्ट 3 तक चले गए, यहाँ पे तो फिर प्रेजेंट ट्रू हो गया ना, तो तुम ब्रेक कर दोगे। देन आई जब बी पे आएगा तो ये यहाँ तक चलेगा। बेसिकली द पॉइंट इज फॉर ईच स्टार्टिंग पॉइंट यू विल गेट दिस इन्फॉर्मेशन जो तुम्हें पहले मिल रही थी। What is the, देखो, for each starting point I'm trying to find out what is the max length substring starting from that particular index, तो वही तो हम कर रहे हैं। देखो, for each starting point हमने एक प्रेजेंट एरे नया बना लिया, और हम फिर j को बढ़ाते जा रहे हैं जब तक वो कैरेक्टर यूनिक है। if this character is repeated, I'm breaking this yeah loop, right? yeah समझ गए? Yeah. Basically now tell me what is the time complexity here? that O was of just n O of n squared. square Just O of n square, correct. So basically brute force में भी हम O of n square तक आ चुके हैं, right? We started from O of n cube, yeah but O of now n we cube. just मतलब thought about something कि यार ये सब हम रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं, मतलब हम बार बार सबको Yeah. क्यों चेक कर रहे हैं, एंड दैट हाँ मेड मी रियलाइज कि वी कैन एक्चुअली रिड्यूस वन लूप, एंड अभी हम ऑर्डर ऑफ n क्यूब से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर पे आ चुके हैं, करेक्ट। यहाँ तक ठीक है। correct तो ब्रूट हाँ फोर्स जो है ना, मैक्स टू मैक्स तो मैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक ला दिया, राइट। अब मैं पूछ रहा हूँ कैन वी स्टिल ऑप्टिमाइज दिस, अब द क्वेश्चन इज कैन वी स्टिल Um, ऑप्टिमाइज दिस। I mean, we can. अच्छा, अभी अपन ध्यान से देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। फिर से तुम्हें फिर से एक चीज़ पता चलेगी जो हम रिपीटेशन कर रहे हैं बार बार। मान लो कि एक Oh, कोई okay. चीज़ है, ए बी सी डी ई एफ ए, हाँ अच्छा नहीं ई कर लिखा यहाँ पे, एफ जी एच पी, ऐसा कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आई जे के ऐसा कुछ है, ये स्ट्रिंग है मान लो। okay तुम्हारी ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर वाली, ये कैसे काम करेगी देखो। और आई बराबर 0, तुम कहाँ तक लेके जाओगे जे को, ये ऐसे चलता जाएगा Just go चलता from जाएगा A चलता B जाएगा, यहाँ C तक D रुक जाएगा, E F yeah यहाँ तक रुक जाएगा जे, करेक्ट। हाँ
एंड यू गॉट द हम्म पॉइंट कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस आई वी कैन गो टिल दिस मच, मतलब 0 1 2 yes 3 correct 4 5. So starting from this I we can have a substring of size 6. We got this information, correct? हम इसको correct अपडेट कर देंगे अपने हाथ से. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, आई को यहाँ पे रखेंगे, राइट? हाँ लेट्स से हाँ दिस इज I1 एंड दिस इज J1. ठीक है, मतलब I1 मतलब कुछ नहीं, yeah आई मतलब वो जीरो इंडेक्स के लिए. अब जब हम I2 पे yeah आएंगे तो हम फिर से J को स्टार्ट करेंगे, राइट? यहीं से, एज यू कैन हाँ सी हाँ yeah J तो correct I से ही स्टार्ट हो रहा है. फिर से हम आगे तक जाएंगे, यूनिक यूनिक ढूंढते 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 और हम यहाँ पे रुक जाएंगे, hmm करेक्ट? yes correct तो तुम्हें कुछ yeah रिपीटेशन दिख रहा है क्या यहाँ पे? बेसिकली ये जो J2 है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है और फिर यहाँ तक जा रहा है. हाँ और J1 हाँ मतलब तुम्हें कुछ रिपीटेशन दिख रहा है क्या कि J2 ने को फिर से ये चीज़ कवर करनी पड़ी, बट J1 तो बता दिया था ना कि ये सब लोग यूनिक हैं. yeah so we can just use J1 then करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट. द पॉइंट इज, देखो ध्यान से, द पॉइंट इज कि while doing this process for zeroth guy, ठीक है, let me just create the indexes first. हाँ. And now we are moving forward, मतलब moving to our sliding window approach. Yeah. हाँ अभी मैंने क्या बोला कि चलो ठीक है, आई अगर ये है तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स व्हाट इज द मैक्स सबस्ट्रिंग यू कैन गेट, राइट? तो yeah जे वही पता करेगा, तो जे बोलेगा चलो ठीक है, लेट्स आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, आई विल गो टिल हियर. हाँ मतलब जे क्या बोलेगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ तक पहुँच गया. yeah और जे आगे नहीं जाएगा क्योंकि उसको पता चल गया ना कि ए वहाँ पे है, तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. अब एक्चुअली में ये जे ने मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी? इस जे ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी कि ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर यूनिक, इजंट इट? ये yeah इन्फॉर्मेशन दी मुझे. नाउ व्हेन आई विल बी चेकिंग फॉर बी, व्हेन आई विल बी चेकिंग फॉर बी, सो अब थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं. hmm अब अगर बी के लिए चेक कर रहे हैं तो क्या मुझे जे फिर से बी से ही स्टार्ट करना चाहिए क्या? no नो, बिकॉज आई नो कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर स्टिल यूनिक based on previous info. So the point is you can start your J from here or maybe yeah from matlab here, right? There is no need to yeah traverse these things again because you already know हाँ from first iteration ki all these elements are unique, so there is no point of checking whether they are unique or not again. yeah Are you guys getting my point? Yeah. yes I am. Yeah. Correct. So basically अब हम जो है, जो हमारा J होगा ना, instead of starting from B we will start from here itself, मतलब जो जहाँ पे एंड हुआ था, और अब हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे, तो ये आगे बढ़ के बढ़ के बढ़ के बढ़ के यहाँ पे आके रुक जाएगा, हाँ करेक्ट? एंड नाउ हियर वी गॉट द पॉइंट कि फर्स्ट हमने आंसर को 6 से अपडेट किया था, अब हम आंसर को जो भी मैक्स ऑफ आंसर एंड J माइनस आई प्लस 1 होगा उससे अपडेट कर देंगे, हाँ. करेक्ट? नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि अब नेक्स्ट आई के लिए ढूंढना है, राइट? अब हम फिर से नेक्स्ट हाँ आई के लिए ढूंढेंगे. अरे यार शिट, तो थोड़ा सा इधर है, जो ये वाला है. हाँ हाँ अगेन द सेम पॉइंट, वी डोंट नीड टू चेंज J, हम J यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हमें पता है ना ऑल दीज एलिमेंट्स आर स्टिल यूनिक, yeah correct राइट? तो अब हम J को बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे. B आया, इट इज यूनिक आई गेस, I J के ऑल ऑफ देम आर यूनिक, राइट? yeah So basically now we reached here, we reached the end of the array, और अब हम फिर से आंसर को अपडेट कर देंगे. yeah अब तुम बस आई को बढ़ाते जाओ आगे, क्योंकि अब J तो आगे बढ़ नहीं सकता है, तो ऐसे आई बढ़ता जाएगा और प्रोसेस खत्म हो जाएगा जब आई यहाँ पे आ जाएगा, because you will be checking for each element what is the maximum yeah correct sub array, what is the maximum substring size starting from you, right? हाँ. अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ समझ में आ रही है क्या हो रहा है? द थिंग इज हमारा जो आई है वो लेट्स से अगर यहाँ पे था तो, और J भी कहीं पे था, तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा थोड़ा बता सकते हो क्या चल रहा होगा? एक्चुअली इन द एंटायर प्रोसेस आई और J आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, राइट? आई भी मतलब जो है 0 से n तक बढ़ता जाएगा, J भी जो है पूरे प्रोसेस में 0 से n तक बढ़ेगा. तो टोटल हाउ मेनी ऑपरेशंस वी आर डूइंग? so total we're doing O of n square वाई O ऑफ n स्क्वायर. देखो टोटली मतलब पूरे प्रोसेस में आई 0 से n तक जा रहा है और J भी 0 से n तक ही जा रहा है, J को हम पीछे थोड़ी ले रहे हैं, समझ आ रही है बात? oh हाँ तो बेसिकली इन टोटल आई विल
हो आई रहा है। ऑर्डर ऑफ एन ऑपरेशंस मांगेगा, जे भी ऑर्डर ऑफ एनी ऑपरेशंस मांगेगा. दैट्स व्हाई दिस अप्रोच इज ऑर्डर ऑफ एन. Oh yeah, because both of them seal. देखो Yeah, correct. देखो देखो Yeah. देखो, थोड़ा सा एक बार और क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा इनपुट बनाता हूँ इस बार में. लेट्स से कि ए बी सी डी ई एफ ए, फिर ठीक है चलो. उसके बाद जब बी आएगा तो बी यहाँ पे आ जाएगा, चलो ठीक है ये भी. उसके बाद फिर जब सी आएगा तो सी शुड नॉट मूव फॉरवर्ड. ओके. चलो ठीक है, यहाँ पे ई लिख देते हैं. Hmm. अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ठीक है, आई और जे के साथ. हाँ. तो एट स्टार्ट वी स्टार्टेड आई फ्रॉम हियर, वी स्टार्टेड जे ऑल्सो फ्रॉम हियर. अब इस पर्टिकुलर आई के लिए आई एम इंक्रीमेंटिंग द जे, ठीक है, कि कितना आगे तक जा सकता है. तो जे बोलेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम गोइंग टिल हियर. Okay. नाउ आई अपडेट माई आंसर. अब आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ आंस जे माइनस आई प्लस वन. बिकॉज आई एम गेटिंग द आई एम गेटिंग दिस इन्फॉर्मेशन कि फॉर दिस पर्टिकुलर जीरो, फॉर दिस पर्टिकुलर आई, if I start a substring from this particular I, the max I can go is this, right? I cannot go beyond it because यहाँ पे A आ गया ना, हाँ. correct? Yeah, correct. Correct. Now the next step is increment I, because now I need to find out for next index कि अगर मैं substring यहाँ से start करता हूँ तो what is the case, है ना? हाँ. तो यहाँ पे अब इतना array बचा. This I and J is actually telling कि इतना सब array की information I already have. Right now this I and J is representing a range, or you can say a sub array. Yeah. They are actually telling कि हाँ, I know about this substring. The information is they are still unique. All of them are unique. Now I'll again increment J कि J जब तक increment करो तब तक we are getting unique. तो J कहाँ तक increment होगा? Just wait a minute. Starting from here, मतलब not starting from here, but right now I is here. And now I'll हाँ. increment J. तो J कहाँ तक जाएगा? Basically यहाँ पे H. तो यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्टिमाइजेशन पता चला होगा. देखो पहले J यहाँ पे खड़ा हुआ था. अब हम जब I के लिए चेक करें तो वी आर नॉट अगेन, मतलब ये J को पीछे नहीं लेके आ रहे हैं, हम J को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, राइट? पहले की Yeah, अप्रोच correct. में जो ये वाली अप्रोच थी उसमें हम क्या कर रहे थे, J को फिर से I पे लेके आ जाते थे. बट अब हम वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ऑब्वियसली ये सारे लोग यूनिक है, तो फिर से क्यों चेक करना. Yeah, so there's no need to do it देयर again. इज नो. हाँ, दैट्स द ऑप्टिमाइजेशन कि अगर तुम पूरी प्रोसेस में देखोगे ना, जस्ट ऊपर से देखोगे तो हो यही रहा है. आई धीरे धीरे करके स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये धीरे धीरे करके एन तक चलता रहेगा. जे भी जीरो से स्टार्ट होके एन तक ही जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा. तो इन टोटल जो है तुम ऑर्डर ऑफ एनी ऑपरेशंस कर रहे हो. इसको एन बार बढ़ाओगे, इसको एन बार बढ़ाओगे, टोटली ऑर्डर ऑफ एनी हो गया. हाँ. एंड दैट्स हाउ, मतलब इसको भी स्लाइडिंग विंडो इसलिए बोला जाता है कि तुम देखोगे ना एट ईच स्टेप ये जो तुम्हारा विंडो है ये स्लाइड ही कर रहा है, आगे पीछे कुछ कुछ हो रहा है. बट द पॉइंट इज इट्स साइज इज वेरिएबल. इसका साइज हाँ. वेरिएबल है, इसका साइज फिक्स नहीं है, क्योंकि फॉर एवरी इंडेक्स देयर कैन बी वेरिएबल लेंथ ना, जो कि बेस्ट पॉसिबल होगा उस स्टार्टिंग इंडेक्स. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आते हैं आई पे. तो बेसिकली नाउ ये बी गायब हो गया हमारे रेंज से, क्योंकि अब हम आई सी पे ला दिए, राइट? अब हम स्टिल फिर से बोलेंगे कि चलो ठीक है जे आगे बढ़ना शुरू करो. तो जे बोलेगा ठीक है, अभी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं यहीं से आगे बढ़ूंगा, ठीक है. जे फिर आगे बढ़ा, यूनिक है, बस यहाँ पे आके रुक गया, करेक्ट. अगेन आई विल डू दिस कि आंसर में ये कर लो, क्योंकि मुझे पता चल गया ना कि इफ आई एम स्टैंडिंग इट दिस आई, व्हाट इज द मैक्स, व्हाट इज द मैक्स, मतलब आगे का कितना मैं आगे जा सकता हूँ, राइट? व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ आई कैन गो. तो वो मुझे पता चल गया. तो बस मैंने ये आंसर को ये कर दिया. अब मैं आई को फिर से बढ़ा दूंगा, मैं आई को फिर से यहाँ पे ले आऊँगा, Correct. Yeah. because I need to know this, I need to know this information for every index, because I am checking for all the possible sub arrays, right? जो किसी भी इंडेक्स से स्टार्ट हो सकता है. So that's how you. Yeah. अब बताओ जे आगे बढ़ेगा क्या? Now. जे स्टिल आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये ई जो है ये रिपीटेड है ना, यहाँ पे भी है. जे बोलेगा कि Yeah, नो so नो नो, that won't. Yeah. अभी नहीं बढ़ना है, ठीक है. फिर हम ई पे आए, तो फिर जे आगे बढ़ेगा क्या? जे अभी भी आगे नहीं बढ़ेगा. नहीं. फिर हम एफ पे आएंगे, अब क्या जे आगे बढ़ेगा क्या? अब जे को आगे बढ़ा सकते हो कि अब ई थोड़ी है यहाँ पे. Yes. Now it's not repeating. Yeah. Correct. So basically, if we have I and J, so we somehow have information about their substring. कि हाँ, all of them are Yes, correct. unique. All of them are unique, and we should also have information to check whether this guy is existing in this subarray or not.
तो फॉर दैट वी विल बी अपडेटिंग द प्रेजेंट एरे, जो प्रेजेंट एरे बनाया था ना उसी को अपडेट करते जाएंगे, बिकॉज वी नो ना कि जब हम आई को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये कैरेक्टर रिमूव हो रहा है, तो हमें पता है रिमूव कैसे करते हैं किसी चीज़ को। और ये कैरेक्टर अगर हम जे को बढ़ा रहे हैं आगे तो ये कैरेक्टर इंक्लूड हो रहा है, तो हमें वो भी पता है कि इंक्लूड कैसे करते हैं, राइट। वो हम हाँ। देखेंगे मतलब आगे कोड में, डोंट वरी। तो अब जे है मतलब हाँ। आई अगर यहाँ पे है तो अब जे बढ़ सकता है, तो जे आगे आगे जाता जाएगा, बोलेगा ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है, जे यहाँ पे आके पहुँच गया तो बस तुमने फिर से ये चीज़ कर ली। उसके बाद तुम आई बढ़ाते जाओगे क्योंकि जे तो बढ़ नहीं सकता ना आगे, तो आई बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, यहाँ पे पहुँच जाओ, प्रोसेस को एंड कर दो। तो इन होल प्रोसेस तुमने देखा क्या हो रहा था, आई 0 से स्टार्ट होकर एन तक गया और आई के पास सिर्फ आगे बढ़ने की पावर थी, जे भी 0 से स्टार्ट होकर एन तक गया, जे भी आगे ही बढ़ रहा था। इट मीन्स हाँ। आई टुक ऑर्डर ऑफ एन स्टेप्स, J also took order of n steps. So in total we are doing order of n operation. Yeah. Correct. That's how sliding Got window it, works, Got right? it. मेन पॉइंट हाँ। यही था स्लाइडिंग विंडो का कि अगर देखो तुम ब्रूट फोर्स में यहाँ तक तो आ ही गए हो, हाँ। ब्रूट फोर्स में n स्क्वायर तक आ चुके हो ना, बट मेन ऑब्जर्वेशन क्या थी Yeah. कि अगर तुम इस आई के लिए यहाँ तक ट्रेवर्स कर चुके हो तो फिर ये वाले आई के लिए फिर से दोबारा मत करो, यहीं से जे को स्टार्ट करो। Yeah. दैट्स द Don't मेन repetition. ऑब्जर्वेशन, Makes sense. दैट्स द मेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। Yes. तो दैट्स हाउ स्लाइडिंग विंडो वर्क्स। अभी लेकिन Got it. अभी जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ना वो इस पर्सपेक्टिव से किया कि फॉर ईच इंडेक्स आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इंडेक्स, करेक्ट? यही तो कर रहे हैं अभी हाँ। हम, बट और मतलब इन 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 अदर केसेस या इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादा यूजफुल ये होता है कि तुम ऐसे चेक करो कि फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द अभी हमने क्या चेक किया कि फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट इंडेक्स, करेक्ट? Correct. बट तुम यूजुअली ये चेक किया करो कि फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सबस्ट्रिंग और बेस्ट सब एरे और एनीथिंग, तभी सब एरे लिख दे रहा हूँ मैं, एंडिंग एट दैट इंडेक्स। एंडिंग ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, एंडिंग एट दैट इंडेक्स। Okay. ये चेक करने से क्या होगा देखो, मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें सब एरे पूछा है और इफ़ यू आर एबल टू डू दिस थिंग कि फॉर ईच इंडेक्स यू आर चेकिंग व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दैट इंडेक्स, तो बेसिकली यू नो राइट कि अगर तुम ये चीज़ कर चुके हो तो तुम्हें पता है इस इंडेक्स पे अगर कोई सब एरे एंड होता है तो बेस्ट क्या है, करेक्ट? इस इंडेक्स पे अगर कोई सब एरे एंड होता है मतलब बेस्ट सब एरे कौन सा एंड होता है, तुम्हें ये सारी चीज़ें पता है। तो अब जो ऑप्टिमल सब एरे होगा जो एक्चुअली में आंसर होगा, लेट्स से अगर वो आंसर ये है तो वी मस्ट हैव काउंटेड इट व्हेन वी एक्चुअली वर मतलब when we were actually calculating about what is the best sub array ending at b, ending at 9, वो यही वाला सब एरे होगा, राइट? Yeah. द पॉइंट इज कि जो आंसर सब एरे होगा वो कहीं तो एंड होगा ना, जो आंसर का जो हमारा सब Correct. एरे होगा It should. वो Yeah. कहीं तो एंड होगा, तो दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग फॉर ईच इंडेक्स कि व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट यू, एंड सिंस वी आर डूइंग इट, सिंस वी आर एबल टू डू इट फॉर एवरी इंडेक्स, वी समहाउ मतलब मस्ट हैव टेकन केयर ऑफ द आंसर। हमने आंसर को पक्का मतलब इंक्लूड कर लिया है ऑल द पॉसिबल केसेस, Yeah. और अगर आंसर को इंक्लूड कर लिया तो तुम पक्का जो तुम्हारा आंसर है वो मैथ्स में अपडेट हो चुका होगा, राइट? Yes. It बेसिकली should. हाउ टू Yeah. सॉल्व दिस प्रॉब्लम, थिंकिंग दिस कि फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दिस, वो भी सेम ही चीज़, वो भी सेम ही तरीके से सोचना है। देखो कैसे, अब तुम्हें ये सोचना है कि फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दैट इंडेक्स, तो वो भी सोच सकते हो। देखो कैसे, ए व्हाट इज द बेस्ट सबस्ट्रिंग एंडिंग एट दिस, ए मतलब वो तो अभी ए ही है, ये A. कब तक चलेगा जब तक तुम्हें कोई यूनिक मतलब जब तक यूनिक कैरेक्टर्स मिलते जा रहे हैं, जब तक आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज तुम्हें पता है कि एफ पे इतना पूरा जो है वो एंड कर सकता है, बेस्ट है। Yeah. अब Yeah. देखो क्या होगा, अब द पॉइंट इज कि देखो जब हम ए पे आएंगे, ठीक है, या फिर तुम्हें थोड़ा ऐसे सोचो कि जब हम मतलब एक मिनट ए पे, हाँ तुम ऐसे सोचो कि यहाँ पे हमारे पास ए आई है, यहाँ पे हमारे पास ए आई प्लस 1 है और यहाँ पे भी कुछ एरे है, यहाँ पे भी कुछ है। अभी हमें हमें ये पता है कि जो ए आई वाला एलिमेंट है ना, इस पे व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग, ठीक है, मुझे पता है ये चीज़ कि अगर आई पे है तो जे मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है मान लो। अब आई जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड, और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्ट, Correct. ठीक है। तो आई नो फॉर दिस पर्टिकुलर आई व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर आई, जो बेस्ट सब एरे वो स्टार्ट कर रहा है जे से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, या इसको थोड़ा सा नंबर्स में ले लेते हैं, एक मिनट रुको, तो थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, ठीक है। एंड मुझे ये पता है कि जो A4 है ना वो उस पर जो बेस्ट सब एरे एंड करता है वो ये है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, हाँ. हाँ. एंड लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिक एलिमेंट्स राइट नाउ। चलो अब मुझे एक बात बताओ कि व्हेन
I'll ask you कि A5 पे बेस्ट सब एरे कौन सा एंड कर सकता है, ठीक है? तो टेल मी वन थिंग, क्या A5 पे जो बेस्ट सब एरे है वो क्या इसके बियॉन्ड जा सकता है क्या J के? नहीं नहीं। नहीं, वाई? वाई की क्यों नहीं जा सकते? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ। लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 1 एंड नाउ लेट्स से दिस इज 3, ठीक है? Yeah. तो नाउ टेल मी व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दिस वन? दिस इज दिस, It's having just unique one, elements, 2, 3, 4 and having yeah. unique elements, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिक एलिमेंट्स। हाँ. Yeah, unique elements. अभी अगर मैं तुमसे पूछूं कि ठीक है, मतलब दिस इज इंडेक्स 0 1 2 3 4 5, अभी अगर हाँ. मैं तुमसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट 5, तो क्या ये जो बेस्ट सब एरे है वो ये 1 को क्रॉस कर सकता है क्या? मतलब क्या हमारे पास ऐसा कोई सब एरे हो सकता है क्या? No. नो। वाई? देखो No. उसका रीज़न ये है कि अगर तुम्हारे पास ये बेस्ट सब एरे हो रहा है, इसका ये मतलब है यू आर समहाउ इंक्लूडिंग दिस मच पार्ट इन योर सब एरे, करेक्ट? ये देखो नीचे वाले में, Yes, correct. एंड दिस Yeah. इज नॉट अ वैलिड सब एरे, क्योंकि ये You तो तुम्हें can't. यहाँ पे पता चल गया Yeah. ना, you जो can't तुम्हें do यहाँ पे that. पता चल गया Yeah. ऑलरेडी कि हाँ. इसका जो बेस्ट सब एरे वो यहीं तक हो सकता है। अगर इसका सब एरे यहीं तक हो सकता है तो इसका सब एरे इसके आगे नहीं हो सकता है। मतलब अगर इसका जे यहाँ पे है No. तो इसका जे इसके पीछे थोड़ी हो सकता है, करेक्ट? Yeah, that इट correct. एक्चुअली मीन्स कि जब तुम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो ना, तो जब तुम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो, व्हेन यू आर चेकिंग कि व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दिस, तो ये जो इसका जो जे होगा ना वो या तो यही होगा या फिर आगे आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ बेसिकली हाँ. लेट्स ट्राई टू डू दिस। तो अब देखो कैसे होगा, आई और जे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो अब आई मान लो यहाँ पे आगे बढ़ गया, आई। Now I'll check whether this 3 is repeated or not. So 3 is actually repeated, so we need to increment j. अब हमें j को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा तब तक जब तक हमारे पास वैलिड रेंज नहीं है, तो हम j को आगे हाँ. इंक्रीमेंट करेंगे, दैट्स इट। यहाँ पे आ जाएंगे। आगे बात समझ में? दिस इज द बेस्ट सब एरे हाँ. एंडिंग एट दिस पर्टिकुलर फाइल। इसके आगे तुम जा ही नहीं सकते हो कि 3 और 3 फिर मैच हो जाएंगे। Yeah, then you can't do it. Yeah. दैट्स द मेन पॉइंट। मतलब जैसे तुमने स्टार्टिंग के लिए किया था ना कि अगर हमें इसका स्टार्ट पता चल गया है तो हम इसके लिए यहीं से जे स्टार्ट करेंगे, वही तुम्हें एंडिंग के लिए भी करना है। कि अगर तुम्हें पता है कि लेट मी जस्ट अनडू ओ जेड। हाँ, अगर मुझे पता है कि 1 पे मुझे पता है कि जो फोर्थ इंडेक्स है उस पे यहाँ तक मतलब दिस इज द बेस्ट सब है। जब मैं 5 पे बढ़ूंगा ना तो मैं जे यहीं से मतलब आगे से स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं जे को फिर कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट कर सकता हूँ कि व्हाट इज द बेस्ट सब हाँ एंडिंग एट दिस 5। देयर इज नो नीड कि मैं आगे जे को फिर आगे जे से पूछूं, क्योंकि मुझे पता है कि फॉर दिस पर्टिकुलर 5 देयर कैन नॉट बी अ जे विच इज लेफ्ट टू इट, इज लेफ्ट टू दिस जे, करेक्ट? हाँ. करेक्ट वही हमने डिस्कस किया। तुम कैसे भी सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को। तुम ऐसे भी सोच सकते हो व्हाट इज द बेस्ट सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडेक्स। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सब एरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स। बट ये मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है। तुम कैसे भी सॉल्व कर हाँ. सकते हो कि दोनों दोनों सेम ही चीज़ है। तुम अगर किसी Yeah. हाँ मतलब तुम सारे सब एरेस को देख लो स्टार्टिंग फ्रॉम पर्टिकुलर इंडेक्स और मे बी एंडिंग एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, तो आंसर तो आना ही है दोनों केस, ठीक है? हाँ. ओके कूल। तो नाउ लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को एक्चुअली में हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग स्लाइडिंग विंडो, है ना? एंड हाँ विच इज ऑर्डर ऑफ n, राइट? Yeah. एज यू कैन सी कि ये जो s डॉट लेंथ है, मतलब अगर तुम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चलाओगे तो क्या वो चलेगा क्या इधर? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर चल सकता है क्या? मतलब विल इट गेट एक्सेप्टेड? Yeah. या व्हाई? इफ Because n it इफ n इज n कितना है? s डॉट लेंथ कितना है? 5 इंटू 5 टेन टू times. द पावर 4। ओ ऑर्डर हाँ. ऑफ n स्क्वायर कितना हो गया? 5 इंटू 10 टू द 10 पावर times 4, n. 5 into 10 to the power 4, which is 25 into 10 to the Oh, power like 8। I didn't even multiply. Yeah. Yeah. इतना Correct. मतलब 1 सेकंड में नहीं चल पाएगा, ठीक है? So that's Oh why yeah. this problem Then will give you correct. TLE if you just submit this brute force solution, ठीक है? हाँ. तो ठीक है, so let's try to implement sliding window, ठीक है? हाँ. ओके cool। तो कौन सा वाला चाहते हो, मतलब कौन सा वाला करें? फॉर ईच इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सब एरे स्टार्टिंग एट दैट वाला करना है या एंडिंग एट दैट वाला करना है? We can do. Let's do ending. लेट्स डू एंडिंग, ओके। या तो बेसिकली अच्छा ठीक है, रुको, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल, है ना? अब एंडिंग वाला हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फॉर हाँ. दैट लेट्स जस्ट कॉपी दिस, क्योंकि लीड कोड में हमें सिर्फ फंक्शन को कंप्लीट करना होता है, राइट? फॉरगेट अबाउट दिस। हाँ.
हमें ये फंक्शन कंप्लीट करना है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग सो फर्स्ट स्टेप इज लेट्स टेक द साइज, ठीक है। नाउ वी शुड ऑल्सो लुक एट द कंस्ट्रेंट्स। तो राइट नाउ हमने प्रेजेंट एरे जो है वो 26 कैरेक्टर्स का बना लिया था। वाई 26? बिकॉज वी अज्यूम्ड कि द इनपुट स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली इंग्लिश लेटर्स। बट यहाँ पर जो है इंग्लिश लेटर्स भी हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, कोई सिम्बल्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेसेस भी हो सकते हैं। इट मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स। अब मैं तुम लोग को एक बात हाँ। बताता हूँ, देखो ऑल अगर सारे कैरेक्टर्स भी ले रहे हैं ना कोई, सब कैरेक्टर्स का जो आस्की वैल्यू है वो अराउंड 256 के नीचे नीचे ही होता है, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ हाँ। एरे साइज 256, दैट्स इट। मतलब अब आस्की वैल्यू से स्टोर कर सकते हो तुम। मतलब बेसिकली जो ए है, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एट 0 यू कैन स्टोर एट इट्स वैल्यू विच इज आस्की वैल्यू 97। 97 इंडेक्स पे उसको स्टोर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ठीक है ना। करेक्ट। ओके, तो बेसिकली ये चलो ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें एंडिंग वाला देखना है, राइट। या एंडिंग एट द ओके, so basically the point is we need to create a present array। या अ न्यू ये एरे वो या पता तो चलना चाहिए ना कि कहाँ पे आई जे इंक्रीमेंट हो हाँ सकते हैं कि नहीं, तो वो करेक्ट। तभी पता चलेंगे। अब हमें क्या करना है, अगर मान लो यही यही आइडिया है तो हम क्या कर सकते हैं, आई और जे दोनों को इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सो हाँ नाउ लेट्स टेक द सिनेरियो। सिनेरियो ये है कि लेट्स से, देखो मतलब जो मैंने नीचे तुम्हें बताया था ना, हाँ। लेट्स से कि हमें इस पर्टिकुलर आई के लिए पता है कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हम्म। जब हम अब नेक्स्ट पर्टिकुलर आई के लिए चेक कर रहे हैं तो हम 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, राइट। वी आर इंक्लूडिंग 3। हाँ तो वी नीड टू मेक श्योर कि हमें जब तक जे को आगे बढ़ाना है जब तक 3 हट ना जाए, करेक्ट। द हाँ पॉइंट करेक्ट। इज कि जे, अगर हम इस आई को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर हम आई को बढ़ा रहे हैं तो हमें ये जे को बढ़ा, जे को मतलब चेंज करना चाहिए क्या, तो तभी करना चाहिए जब ये 3 एक्चुअली में रिपीटेड हो रहा हो, यस देन ओनली। करेक्ट। सो बेसिकली देखो कैसे करेंगे, तो फॉर एवरी इंडेक्स let's try to find out let's try to find out the length of longest substring ending at ith index, ठीक है। हाँ ओके so for that you should also have another pointer which is j, क्योंकि j एक होना चाहिए ना जो कि तुम्हें या बताएगा for every। करेक्ट। अभी तुम ऐसे देखो कि इसी एग्जांपल को देखते हैं। द पॉइंट इज कि अगर मान लो कि I'm standing here और मे बी हाँ ठीक है, लेट्स से आई एम स्टैंडिंग हियर समहाउ। मुझे पता है कि इस एफ पे तो बेस्ट सब एरे यहाँ पे एंड हो सकता है, ये वाला, हाँ। दिस इज द बेस्ट सब एरे। तो जे इज स्टिल एट 0 राइट नाउ फॉर आई इज इक्वल टू 5 ना। हम्म। नाउ व्हेन आई एम करेक्ट। इंक्लूडिंग दिस आई इज इक्वल टू 6 व्हाट शुड आई मेक श्योर कि मुझे जे जब तक आगे बढ़ाना है जब तक ए ना हट जाए, राइट, बिकॉज आई एम इंक्लूडिंग दिस ए। हाँ दैट शुड बी द कंडीशन। द कंडीशन इज व्हाट इज द करेंट कैरेक्टर। करेंट कैरेक्टर क्या होगा, एस ऑफ आई। या यू आर इंक्लूडिंग दिस एस ऑफ आई, राइट। या यू नीड टू मेक श्योर कि एस ऑफ आई प्रेजेंट ही ना हो, तब तक तुम्हें जे को बढ़ाना है। यू विल से वाइल प्रेजेंट ऑफ एस ऑफ आई इज ट्रू, वाइल दिस एस ऑफ आई इज प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट एरे। देखो ये प्रेजेंट एरे ही तो है, मतलब एक तरह से ये जो है ये प्रेजेंट एरे, मतलब ये चीज़ स्टोर करेगा कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ये चीज़ स्टोर हाँ कैसे करोगे कि ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक प्रेजेंट एरे बनाओगे ना, इसमें ये सब चीज़ें वन होंगे। हाँ you obviously या Now when I'm incrementing my range, मतलब when I'm taking decision कि यार ये I is equal to 6 पे क्या सब array बनना चाहिए, what is the best सब array ending at this, I need to make sure कि अगर मैं A include कर रहा हूँ तो फिर उस सब array में A नहीं होना चाहिए कहीं भी। I need to make sure कि मैं J को जब तक चेंज करूँ, जब तक आगे बढ़ाऊँ, जब तक A ना क्रॉस हो जाए, राइट। That's what I'm checking या कि क्या A S of I प्रेजेंट है क्या। तो अगर जब तक S of I प्रेजेंट है जब तक तुम्हें कुछ नहीं करना है, you need to increment J। तो जे को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैं जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं जे को यहाँ इसको छोड़ के यहाँ पे ला रहा हूँ, इसका ये मतलब है ना कि आई हैव रिमूव दिस गाय या फ्रॉम माई प्रेजेंट। दैट्स व्हाट आई नीड टू डू। एल से प्रेजेंट ऑफ एस ऑफ जे विल बिकम 0 एंड जे प्लस प्लस। समझ आया हाँ दोनों को। so far yeah ओके आ रही।
Yeah. Yeah. तो नाउ जब तक मेरा प्रेजेंट है एस ऑफ आई, मतलब जब तक मेरा करेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है ना प्रेजेंट एरे में, तब तक यू नीड टू इंक्रीमेंट जे। एक टाइम ऐसा होगा कि ये प्रेजेंट कैरेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि तुमने जे को इंक्रीमेंट कर दिया। देन देन यू नीड टू इंक्लूड दिस इन योर रेंज। इसका क्या मतलब है, इंक्लूड दिस इन योर प्रेजेंट, मतलब देन यू नीड टू इंक्लूड दिस करेंट कैरेक्टर इन योर प्रेजेंट, क्योंकि नाउ अब ए के लिए चेक हो चुका है तो ये ए ऐसे बढ़ जाएगा ना, तो ये ए भी आ गया है प्रेजेंट। दैट्स व्हाई यू शुड से हाँ. present of s of I is 1, correct? Yeah. And now for Yeah. every I you need to take what is the max of I minus j plus 1. कि right now I जो है वो क्या बता रहा था, ending I is your ending, j is your starting. So what is the length of subarray? I minus j plus 1. Minus j plus 1. हाँ. And just you need to return answer. Any doubt in this code? थोड़ा सा बड़ा करते हैं। No doubt so far. समझ आया मतलब स्लाइडिंग विंडो काम कैसे किया? द पॉइंट इज फॉर Yeah. एवरी इंडेक्स आई एम एबल टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द बेस्ट सबेरी एंडिंग इन दिस। अगर तुम ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हो ना, तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, क्योंकि तुमने हर इंडेक्स पे निकाल लिया ना बेस्ट सबेरे क्या होता है, क्या होगा एंडिंग वाला, जिस इस पे एंड करेगा। तो तुम्हें पता है कि जो आंसर, जो एक्चुअल में आंसर वाला सबेरे होगा, जो बेस्ट सबेरे एक्चुअल में होगा, वो कहीं तो एंड कर ही रहा होगा, तो जो उसका एंडिंग Right. पॉइंट Yeah. होगा उस पे तुमने आंसर निकाल दिया होगा, Right. Correct. राइट? So let's see whether we have any compilation errors. Yeah. Answer was not declared. Okay. No compilation error. Let's try to some. We can also use a set as well, but present array और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि set जो है, अगर तुम ordered set use करोगे तो that will give you order of log n वाला वो factor भी देगा वो, right? Yeah. When you insert something. So it got accepted. Yeah. So tell me what is the time complexity of this solution? अब तुम्हें ऐसे देख के देखो यहाँ पे ऐसा, अगर तुम सीधा देखोगे तो ऐसा शायद लग सकता है देखने में कि यार ये एक लूप है, इसके अंदर एक वाइल लूप है, देखने में ऐसा लग सकता है कि मे बी इट इज n स्क्वायर, बट जो ये है अप्रोच वो ऑर्डर ऑफ n ही है, बिकॉज हमें Yeah, पता this है, is हमें all पता है कि जो इन टोटल, वी टॉक अबाउट इन टोटल ऑपरेशन, राइट? तो हमें पता है कि इन टोटल तो i भी n ही बार आगे बढ़ेगा, j भी n ही बार आगे बढ़ेगा, तो इट इज एक्चुअली ऑर्डर ऑफ n, इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ये बस वाइल लूप दिखने के लिए लग रहा होगा तुम्हें कि यार लूप के अंदर लूप है, बट दे आर नॉट नेस्टेड लूप, मतलब ये एकदम नेस्टेड प्रॉपर लूप्स नहीं है कि ये भी n बार चलेगा तो ये भी n बार चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। Yeah. लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर आई ये 5 बार चला, दूसरे आई के लिए एक भी बार नहीं चला, तीसरे आई के लिए एक भी बार नहीं चला, ऐसा होगा, मतलब इन टोटल दिस लूप विल रन ऑर्डर ऑफ n टाइम इन टोटल। क्या समझ गए? हाँ. हाँ. समझ. Okay. This is actually order of n solution. This is how variable size sliding window works. कि तुम यही सोचते हो, मतलब Yeah. इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व करना होता है कि तुम ऐसे सोच लो कि फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स व्हाट इज द बेस्ट सबेरे एंडिंग एट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है? Okay. उसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें ये ऑब्जर्वेशन पता होगी, मतलब ये ऑब्जर्वेशन दिख रही होगी कि लेट्स से अगर हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स, लेट्स से कि अगर यहाँ पे a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 है, और मुझे a3 के लिए पता है व्हाट इज द बेस्ट सबेरे एंडिंग एट दिस, मान लो ये है, Right. हाँ. तो A4 के लिए जो बेस्ट सबेरे होगा ना वो ऐसे नहीं हो रहा होगा, मतलब पीछे नहीं जाएगा वो, मतलब आगे ही यहीं, या तो ये हो सकता है या इसके आगे ही कहीं पे हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर आई यू जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट जे व्हेनेवर इट इज वैलिड। तो जब तक वैलिड नहीं है जब तक इंक्रीमेंट करते जाओ जे। गॉट द पॉइंट? हाँ. Yeah, got it. ओके, सो दैट्स हाउ यू शुड सॉल्व। मतलब ये इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वेरिएबल साइज विंडो वाले, वो ऐसे ही सॉल्व करने होते हैं, क्योंकि यहाँ हाँ. पे तुमसे विंडो साइज ही एक्चुअली में पूछ रहे हैं। देखो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग पूछ रहे हैं, जो कि विंडो लॉन्गेस्ट साइज ऑफ योर विंडो होगा थ्रू आउट द प्रोसेस। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करना होता है। फॉर एवरी इंडेक्स जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द बेस्ट सबेरे एंडिंग और मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम दैट। गॉट इट? हाँ. यही मेन, मतलब यही चीज़ तुम्हें याद रखनी है टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, कि फॉर एवरी इंडेक्स मतलब ये वाला जो चीज़ है ये चीज़ याद रखनी, ठीक है? तो अब इसके कई सारे वेरिएंट्स बन सकते हैं। इन सम केसेस दे कैन आस्क यू कि व्हाट इज द फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग हैविंग k डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। अब उसमें से कंडीशन ये हो जाएगी कि जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स होंगे वो k ही हो सकते हैं।
उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ऐसा कुछ कुछ अलग 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 कंडीशंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं हाँ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में डालूंगा, तो वो जब हम सॉल्व ओके करेंगे तो हमें और पता चलेगा अच्छे से। ठीक है। गॉट इट। बेसिकली ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, इन पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होंगे। ऐसे सिर्फ हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते इस पर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। या ठीक है। गॉट इट, मेक सेंस।